So this is where we had stopped yesterday. We'll continue from here, and let us continue. So now going forward, what are we going to do is we are going to study the different features of this periodic table. We are going to look at the variation, the trends in the different properties in the periodic table, and let us see how the elements are distributed across the periodic table according to their electronic configuration. Yesterday, I gave you a very small brief about how to use SPDF and how to write the electronic configuration. Today, let us even have a look at the Aufbau principle or something related to that. Okay. So we know that there are 18 groups and there are 7 periods over here. Right? Yes, sir. Yes. 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 So now when I talk about this periodic table is भैया बेटा ये जो ब्लैक में हाईलाइट किया है ना ऊपर वो देखो जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द एस सबशेल और उन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होता सिमिलरली जो एस दिख रहा है जो सेकंड ग्रुप है उसमें S2 होता है नाउ लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहा है तुम लोग को Yes, sir. हाँ देखो फ्रॉम से ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक देखो ग्रुप 13 से शुरू होता है S2P1 देन S2P2 S2P ये इनका लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है मतलब ये ग्रुप का जो भी एलिमेंट आएगा irrespective of the shell in which the electron is entering it may be the second shell the fifth shell the seventh shell the outer shell electronic configuration is going to be NS2 NP1 N can be 1 2 3 4 5 and so on okay up to S2P6 S2P6 बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लास्ट शेल में Yes. हाँ ऐसा है तो ये इस हिसाब से ना एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाओ समझ रहे ना now when I talk about the periods will have those elements which are having the same principal quantum number now I use the word principal quantum number ये मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था what does principal quantum number what does principal quantum number mean or rather it denotes Where the electron can be found. where the electron can be found okay थोड़ा सा orbit और of the electron specific orbit of the electron orbit of the electron shell in which the electron is going to lie orbit right Yes, sir. acha so in this modern form of periodic table what's going to happen is the elements in the same period are going to have the same principal quantum number abhi I am writing the elements in the same period are having the same principal quantum number it's just the modern way or rather the advanced version of saying what you said in 10th standard in 10th standard you said the elements in the same period have the same number of shells similarly 11th में हम ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग 11th में क्या बोलेंगे the elements in the same period will have same principal quantum number बेटा रिश्ता वही सोच नहीं है ना वही बात है बट थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश एंड साइंटिफिक टर्म्स डाल करके उसको भवरा के ऐसा मस्त सजावट करके आपकी थाली में रखा है इट्स वन एंड द सेम थिंग सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर ओके सर ये देखो देखो उनका electronic configuration if you observe now the electronic configuration is only going to change in the outermost shell सबका outermost shell वही रहेगा देखो
सबका आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, अगर आप मैं सेकंड रो को देखूं तो बस उसके अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, कहीं 2s1 है, कहीं 2s2 है, कहीं 2s to 2p1 है, कहीं 2s to 2p4 है, कहीं 2s to 2p6 है। शेल सेम है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही, ठीक है ना। अगर मैं फोर्थ पीरियड को देखूं तो फोर्थ पीरियड में भी लास्ट ऑर्बिट सबके पास फोर्थ शेल ही है। Fourth orbit is the last orbit. Maximum highest principal quantum number which we can see in the fourth period is 4. All the elements have 4 shells. It's just that their electronic configuration is changing. D group elements में the valence electron is going to enter the penultimate shell. कुछ नया वर्ड बोला मैंने Yes. क्या? Yes. कल बताया था ना मैंने penultimate. Third, Last second last, ultimate, second last, last sir. ultimate, last. second last, penultimate, and Third either last, third last is pre-ultimate, called as pre-penultimate pre-ultimate, or pre-penultimate बेटा, pre-ultimate नहीं, pre-penultimate pre-penultimate. और anti-penultimate। तो D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना पेनल्टीमेट शेल में जाता है, और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है प्री पेनल्टीमेट शेल में। ये हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे साइंस अब केमिस्ट्री बढ़ेगा पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। Sir, which is the हाँ sir हाँ बोलो बेटा। pre-penultimate का दूसरा नाम क्या था? एंटी पेनल्टीमेट, एंटी एंटी। Okay, thank you. ओके सी सो मेरा जो पीरियड है उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स मैं एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी बेटा मैंने कल आपको समझाया था सेकंड ऑर्बिट में सिर्फ s और p ऑर्बिटल होता है, ओके। तो s के अंदर हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं और p के अंदर हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। So what is the maximum number of electrons that can be accommodated in the second orbit? 8. 8. 8. 8. Very good. So that is why we are going to have 8 elements in the second period. ठीक है? Could you relate to this? Starting with 1 electron and going up to a maximum of 8 electrons. Second row, second period is going to accommodate maximum of 8 elements because उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड शेल में फिट नहीं होती है ना। Yes. Yes. Is it easy to digest or is it rocket science? Is it difficult for you to understand this point? No. Anybody? अगर किसी एक को भी डाउट है तो बेटा प्लीज पूछो, I will repeat myself again. सगळ्यांना कळलंय का बाळा आता मी काय सांगितलं? चलो, I am assuming that your silence is saying that you all have understood it and my students are not shy to ask questions. I don't want them to be shy. So let us move on. Okay, so second period is going to have maximum of 8 electrons. Similarly, first में कितना हो सकता है बेटा? 2 हो सकता है। तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है? हाइड्रोजन और हीलियम, Helium. है ना, बिकॉज फर्स्ट में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आ जाओ, योर एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, 4, ये सब हमने डिस्कस किया है बेटा। नाउ इट इज जस्ट बीइंग विजुअली रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे. That is why I'm using this presentation, this video for you to teaching, because it's much easier when it comes, and it is helpful for me also because I am lazy. I don't want to write on the board. ये देखो, first period is corresponding to electrons which are sharing in the first energy shell when n is equal to 1. ये एनर्जी में सिर्फ ये शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आई एम having only 2 elements, hydrogen and helium. समझे बेटा? Yes. Okay.
सेकेंड पीरियड जो है वो L शेल रहता है, where n is equal to 2, total of 4 orbitals, 1s 2s 2p. एक 2s का होता है, 3 2p के होता है, s में 2, p में 6, 6 plus 2 8. It starts with lithium with atomic number 3 and electronic configuration 1s2 2s1. आणि लास्ट एलिमेंट कोणता आहे? निऑन. निऑनचा atomic number आहे 10, 1s2 2s2 2p6. I am assuming nobody is having any problem understanding 1s2 2s2 2p6 now. सबको No, समझ sir. रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. This yes sir is for having a problem or not having a problem? Not having Not a having a problem. problem. Okay. So I guess everybody is now aware that this 1s2 2s2 is nothing but the distribution of electrons in the different energy levels and their sub energy levels. अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ठीक है, it is the distribution of electrons in the orbits and the orbitals 1s2 2s2 2p6. So this is the maximum number of electrons that can be accommodated in the second shell. इसीलिए this is the last element which can be there in the second period, which is neon with atomic number 10. Third period देखते हैं अपन. Third period is your M shell. M, n is equal to 3. किसी का माइक ऑन है बेटा? डिस्टर्बेंस हो रहा है. Where n is equal to 3. ठीक है. अच्छा. लास्ट शेल में इसका जो लास्ट शेल है, इसमें टोटल 9 ऑर्बिटल्स है. एक 3s का, 3 3p का और 5 3d का. I told you this yesterday. S will have 1 block, P will have 3 blocks, D will have 5 blocks. So 5 plus 3 plus 1, total number of orbitals कितना हो गया यहाँ पे बेटा? 9. 9. 9. अभी देखो. This is what I was talking about as Aufbau principle. ये जब तुम लोग Aufbau principle पढ़ोगे ना बेटा, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मतलब बनाना इस रूल से सीखोगे. जो डायग्राम मैंने कल आपको दिखाया था ना, ट्रस्ट मी, इवन दैट इज इजियर देन दिस डायग्राम. जो कल डायग्राम हमने देखा था सेम वीडियो के अंदर, दैट इज मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड ना बेटा. Yes. इसमें देखो, यू हैव टू फॉलो द एरो. जस्ट फॉलो द एरो. आई एम रीडिंग इट आउट. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d. पहले 3p में जा रहा है, फिर 4s में जा रहा है, उसके बाद 3d में जा रहा है. तो 3p के बाद पहले 4s भरता है, उसके बाद 3d भरता है. इसीलिए मेरे थर्ड ऑर्बिट में मेरे को इतने सारे एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, बिकॉज पहले 4s भरेगा. 4s भरने के लिए मुझे फोर्थ ऑर्बिट में जाना पड़ेगा. So that's why I'll jump to the fourth orbit before this. ठीक है? By the way, you can make this. This is the actual Aufbau principle which I was talking about. Aufbau principle exactly ये है जो आपके सामने दिख रहा है. इस तरीके से just follow the arrow and this is how electrons will be filled in the shells and the subshells. पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s. 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s. अपने को इतना आगे तक नहीं जाने का है. तुमको याद रखना होगा मैक्स टिल 3d तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद रखने हैं, या फिर मैक्सिमम 5s तक 12th स्टैंडर्ड में. उसके आगे अपने को ज्यादा मगजमारी नहीं करने की, और करने का जरूरत ही नहीं है, याद रखने का जरूरत ही नहीं है. एक बार ये Aufbau प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया ना, यू कैन write down the electronic configuration of any element given to you.
नाउ अगर आप ये प्रिंसिपल, ये रूल फॉलो करो, और if I tell you to write down the electronic configuration of element with atomic number 78, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको 78 इलेक्ट्रॉन्स को ये रूल के हिसाब से बस बांटना है और कुछ नहीं करने का बेटा। So trust me, it is very easy. It is not difficult. And when you speak out the electronic configuration in terms of s and p orbitals, you sound more intelligent rather than when you speak 2, 8, 1, है ना? अभी हम 11th 12th में आ गए, तो हम लोग इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बखान करेंगे। ये लिख लिया बेटा? कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. अच्छा अच्छा, आ जाओ। 3s 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d जाता है। So for filling electrons, only 4 orbitals are available in the third shell. Which are those 4 orbitals बेटा? 3s का 1 और 3p का 3। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितना एटम्स, कितना एलिमेंट्स आ सकता है फिर इस रूल के हिसाब से? 3d, तो यहाँ पे 3d जो है वो थर्ड पीरियड में अवेलेबल ही नहीं है फिलिंग के लिए। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो सिर्फ 3s और 3p अवेलेबल है। तो अगर 3s और 3p अवेलेबल, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं इसके अंदर? 8. एक नंबर। क्यों? बिकॉज 3s के अंदर, s के अंदर 2 और p के अंदर 6, 2 + 6 8। एक्सेलेंट। सबको ये लॉजिक समझा? Yes. रिपीट करो, रिपीट करेगा बेटा। मैं क्या है ना बेटा, थर्ड ऑर्बिट के अंदर s, p और d होता है, ठीक है? तो एज पर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द थर्ड ऑर्बिट। बट थर्ड पीरियड के अंदर सिर्फ 8 ही एलिमेंट्स है। अभी हमने देखा कि जितना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, उतना एलिमेंट्स उस पीरियड में होता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो थर्ड शेल के अंदर हम लोग 10 + 10, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। सॉरी, 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तो उस रूल के हिसाब से 18 एलिमेंट्स आना चाहिए थर्ड पीरियड के अंदर। बट थर्ड पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, थर्ड पीरियड के अंदर सिर्फ 80 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज थर्ड पीरियड में सिर्फ मेरा थर्ड शेल 3s और 3p अवेलेबल है। 3d जो होता है वो 4s के बाद भरता है, इसलिए 3d becomes available only in the fourth period and not in the third period. पता कर ला? Yes, thank you. Yeah, welcome beta. Everybody has understood this logic? Yes. 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 Good beta. So effectively available shells are 3s and 3p. तो यहाँ पे इसीलिए 8 each elements आएगा, starting from sodium whose electronic configuration is 3s1, last shell electronic configuration, and ending with argon with 3s2 3p6. इतना समझा सब लोग को? I hope you all are making notes. लिहितायत ना बाळांनो? ऍटलीस्ट स्क्रीनशॉट तरी घेतायत ना तुम्ही? People are laughing, that means they are not writing. This is very sad. अच्छा, let us have a look at the fourth period now. अच्छा, by going by that logic, fourth period में तो last shell fourth shell रहेगा, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं S, P, D, F सब आना चाहिए। तो S का 2, P का 6, D का 10 और F का 14 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए उस रूल के हिसाब से इसमें? 32. वेरी गुड, वेरी गुड। तो पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा काय को होगा नहीं? सेम रूल आएगा। 4s के बाद 4p भरता है, 4p के बाद अपना सॉरी 4s के बाद 3d भरता है,
3D के बाद 4P आता है, 4P के बाद फिर 5S आता है, दैट्स वाई, सो दैट रूल के हिसाब से अगेन यहाँ पे कम होता जाएगा एलिमेंट्स। आ जाओ 4th पे, we are filling the 3D orbitals and so according to this Aufbau principle 4s के बाद हम लोग पहले 3D भरते हैं, उसके बाद 4p भरते हैं। तो इसीलिए ये पीरियड के अंदर 3D ट्रांजिशन सीरीज आएगा। ये देखो कैल्शियम और कैल्शियम के बाद जो डी एलिमेंट्स है जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, थोड़ा पढ़ा रहेगा 10th में इसके बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Yes. Transition elements are placed between S block and P block elements. They are in between. When in the periodic table, when you are moving from left to right, you are passing through this series. That is why they are called as transition elements. 4th 4s भरने के बाद इसका लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका सेकंड लास्ट शेल में जा रहा है, इसके पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए अपन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल रहे हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. देखो फ्रॉम ये वाला 3D वाले सीरीज में फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आएगा 21 to 30। 12th स्टैंडर्ड में आपको सेपरेट चैप्टर है इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनके कंपाउंड्स के ऊपर, मस्त चैप्टर है वो भी। ठीक है? सो लुक एट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2 3D2 4s2। कल हमने किया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 27 विद 28, आपने लिखा था करेक्ट आंसर सब। Yes. वो ऐसे ही Yes. आएगा। 3D element, 3D series का first element is scandium and having electronic configuration 3D1 4s2, and then the last in the 3D series is zinc 3D10 4s2। so 3D जो पूरा series है ये देखो, this is the electronic configuration of your elements of 3D series from scandium to zinc। ये सिर्फ D block वाला है, पूरा जो मेरा 4th पीरियड है उसके सब एलिमेंट्स नहीं है, ये उसमें से सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उसके आगे पीछे मेरे दूसरे एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, तुम लोग को ये हुआ है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? नहीं। No. No. ठीक है, ओके ओके ओके, फॉरगेट इट। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको कुछ यहाँ पे वियर्ड दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन में? AR. Air. दैट इज ओके। AR जो दिख रहा है ना, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। मतलब 4s बाद में आ रहे हैं। नहीं, दैट इज ओके, 4s बाद में आएगा ना बेटा, लास्ट शेल तो 4s ही है ना। अगर मैं इसको देखूं रिंग के हिसाब से देखूं तो पहले लास्ट शेल आएगा, उसके बाद सेकंड लास्ट शेल, तो सेकंड लास्ट शेल में उसके पहले आएगा ना, है ना। अच्छा, AR जो है ना, AR इन ब्रैकेट इट मींस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AR। 3D1 के पहले क्या है? 1s2 2s2 2p6 3p6 4D5. 4D5. 1s2 2s2 2p6, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए हमने वहां पे AR लिखा है। सबको समझा? Yes, sir. Yes. तो वो हर बार 1s2 2s2 2p6 लिखने से अच्छा, वो साइंटिस्ट लोग को पता है कि आगे की जनरेशन के बच्चे कामचोर होंगे, तो इसलिए उनको शॉर्टकट देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया है, जो नियरेस्ट नोबल गैस का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है उस गैस का सिंबल आगे लिख देते हैं और सिर्फ बैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में डालते हैं। तो वही किया है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा? Yes. अच्छा, इसके अलावा कोई डिफरेंस दिख रहा है तुमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में? पहला 4s2 लिखा है, लास्ट में 4s1 आया है। वेरी गुड वेरी गुड। ये किसने देखा? कौन है ये? तेजस। Tejas, very good, but I must say that you got very nice eyes. I mean, not in that way. I'm just telling you that you can see things properly that way. So, if you look at the configuration of chromium, it is 3D5 4s1, and if you look at the configuration of copper, it is 3D10 4s1. तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? आप वैनेडियम को देखो, वैनेडियम में ना configuration 3D3 4s2 है, but chromium में it should, according to this rule, chromium configuration क्या होना चाहिए? 3D4 4s2, right? ऐसा होना चाहिए? Yes. Yes. अच्छा, very good. But क्या हो रहा है? What is the observed configuration?
the expected configuration is 3D4 4s2, but the observed configuration is 3D5 4s1. ऐसा काय को हो रहा? अभी देखो बेटा, I'll tell you. D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकता है? 10. वेरी गुड, ये सबको पता है, मैंने कल बताया था. D के Yes. अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है. I'm explaining you something which you will again learn in different chapters. So be smart enough to understand this, and when you're learning this topic, you should give answers and act smart over there. So तराजू पता है सब लोगों को? तराजू, Yes, sir. Yes. Yes. तराजू is the weighing scale. अगर वेइंग स्केल के दोनों पैन्स पे मैं इक्वल वेट रखूंगा तो मेरा जो काटा है वो स्टेबल रहेगा. Yes. Yes. अच्छा, किसी एक में ज्यादा वजन और किसी एक में कम रहेगा तो वो ऊपर नीचे होएगा बेटा. Yes. Yes. इट विल बी अनस्टेबल. अच्छा, Yes. अब मेरे पास डी के अंदर 5 ब्लॉक्स है. बेटा मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो ना. हाँ, अब डी के अंदर ना बेटा मेरे पास 5 ब्लॉक्स है. 5 ब्लॉक्स में से अगर मैंने 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन डाला और एक खाली रहा तो आई विल से दैट दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड. ओके, व्हेन विल माय डी ब्लॉक बी कंप्लीटली फिल्ड? जब उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा. Yes. ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट इज कंप्लीटली फिल्ड. बट अगर हर एक ब्लॉक के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो कैन आई कॉल इट एज हाफ फिल्ड? Yes. राइट. 10 का हाफ क्या है? 5 5. Yes. ना बेटा. दिस इज अ रूल, ये आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, दैट अ ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल व्हेन इट इज आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड. या तो उसके अंदर आधे इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर फुल इलेक्ट्रॉन्स हो. अगर इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है. Now nature is very beautiful beta. Nature has made elements and it always tries to give stability to all the elements. So if you look for chromium, अगर मैं 3D4 और 4s2 करूं तो मेरा D incompletely filled है. बट अगर S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके मैं D में डाल दूं तो मेरा D हाफ फिल हो जाएगा. D हाफ फिल हो गया तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. और 4s को 2 रखूं या 1 रखूं, वो either which way stable है, because 1 is half filled and 2 is completely filled. Yes. Right. Yes. That is Yes. why one electron from 4s orbital jumps to one orbital of D and makes the D orbital half filled and makes the configuration more stable. That is why the electronic configuration of chromium is observed as 3D5 4s1 instead of 3D4 4s2. 4s2. ये वाड़न कड़ला करे. Yes. मैंने तराजू का एग्जांपल इसलिए दिया था, अगर सब मतलब सब ब्लॉक्स के अंदर प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो इट विल बी इक्वल. अगर किसी एक में भी कम या ज्यादा रहेगा तो इट बिकम्स अनस्टेबल. दैट इज व्हाट आई मेंट. तो आई वांटेड दैट एनालॉजी टू अप्लाई ओवर हियर. डिड यू अप्लाई दैट एनालॉजी? सब लोग शांत हो गए. बाकी एलिमेंट्स में बोलो बोलो बोलो. दूसरे एलिमेंट्स में पूरा भाई दूसरे एलिमेंट्स बोल के रह गया. पूरा बोलो बेटा. आज बोलना बेटा. अरे बोलो, आई एम वेटिंग फॉर यू. सर आई थिंक वो बोल रहा है कि बाकी एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं है. बाकी एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं है? 3d1 4s2, अगर 4s में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन D को दे भी दूं तो हाफ फिल तो नहीं हो रहा है ना. 3d2 4s2, अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल के डाल दूं तो इसमें क्या बोलते हैं हाफ फिल नहीं हो रहा है. 3d3 4s2, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स S में से निकाल के D में डाल दूंगा तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल पूरी तरीके से ये हो जाएगा, टूट जाएगा. तो वो भी नेचर के लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता. राइट. इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूंगा, S को भी बुरा नहीं लगेगा, D को अच्छा लग जाएगा, ऐसा. अब अगर हम नीचे आए तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है. एंड नाउ इफ यू लुक एट कॉपर का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d9 4s2 ऐसा होना चाहिए. बट कॉपर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं S का डाल दूं तो कॉपर का D सबशेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा.
and it will become more stable. इसीलिए उसका observed configuration is 3D10 4s1. अयो सुमने कुंद्रिला हाँ समझ रहा बेटा? हाँ पक्का? हाँ Any doubts anyone? Even if you have doubts, it's okay because ये हम लोग दोबारा उस atomic structure वाले चैप्टर में सीखेंगे. ये इस चैप्टर में हमने सीखना जरूरी नहीं है, but आया है सामने मेरे, and I being a teacher, I मजबूर by my आदत, so I was teaching something extra. Did you understand what was I trying to speak over here, beta? yes sir Yes, sir. अच्छा अच्छा. All the 70 students, any doubt? Please ask me, beta. no No. No. अच्छा. First element is scandium and last element is zinc. थ्री डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया, कहानी खत्म. सॉरी. उसके बाद the element ends with krypton is 6, which is having 4s2 4p6 वाला configuration. D के बाद कौन सा भरता रे? P भरता ना बेटा, है ना? 3D के बाद 4p भरना शुरू हो जाता है, yes yes राइट? तो 3D के बाद P ब्लॉक शुरू हो जाएगा, उसके अंदर 4p वाला क्या बोलते हैं ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाएगा. 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6. 4p6 हो गया मतलब उसका लिमिट खत्म, right? So the last element is krypton. Krypton is having 8 electrons in its last shell, which is the fourth shell. 8 electrons in the last shell means stable configuration. Stable configuration, noble gas, right beta? So the periods are ending in one noble gas each. Fifth period is corresponding to the filling of fifth energy shell. Similar rules, इसके अंदर 4D transition element आएगा जिसके अंदर 4D series भरना शुरू हो जाएगा. Starts with yttrium with atomic number 39 and ends with cadmium with atomic number 48. The last element in this 4D series altogether is going to be, भाई उड़ा दिया इसने तो, yeah, similar over here. If you see 4D series का yttrium first and cadmium last. फोर डी ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो गया, उसके बाद क्या भरना शुरू होगा बेटा? 5p, है ना? 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s भरेगा. 6s तो 6 पीरियड में जाएगा ऑल टुगेदर. तो यहाँ पे फिर 5p में एंड हो रहा. 5p में मैक्सिमम क्या होगा? 5s2 5p6, जो किसका है? xenon का है. अगेन अ नोबल गैस. 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट. सिक्स्थ पीरियड देखो, सिक्स्थ पीरियड के अंदर 5D ट्रांजिशन सीरीज आएगा. ये देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सिक्स्थ पीरियड बेटा? 32 हाउ मेनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द सिक्स्थ पीरियड बेटा? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द सिक्स्थ पीरियड? 6s 6p 6d 6f. 4 ऑर्बिटल्स. ये 4 ऑर्बिटल्स के अंदर मैं मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है? 32. वेरी गुड. तो ये सिक्स्थ पीरियड से वो रूल वापिस से लागू हो जाता है. सिक्स्थ पीरियड में अगर मैं बात करूं तो मेरा एफ ब्लॉक भी सिक्स्थ पीरियड में आता है और मेरा क्या बोलते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज भी सिक्स्थ पीरियड में आता है और मेरा पी ब्लॉक और एस ब्लॉक. दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट पीरियड ओवर हियर. नाउ इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो इसीलिए उनको हम लोग ने टेबल के नीचे रखा हुआ है, बट दे ऑल बिलोंग टू द सिक्स्थ पीरियड. कैन यू सी दिस इन फ्रंट ऑफ यू? yes sir In the sixth period, all the orbitals
6s, 6p, 6d, 6f. All these orbitals are being filled. That's why अपन उसको 32 एलिमेंट्स उसमें दिखेगा. ओके. लैंथेनम के साथ लैंथेनॉइड्स रखा है, 14 लैंथेनॉइड्स. सीरियम टू ल्यूटेटियम. Why is this going difficult बेटा? ये तो याद है ना हमको, 10th में किया था बेटा. ये तो हमने नहीं किया था. किया था. अच्छा, सारे शांत हो गए. क्या हुआ बेटा? भूकंप आया कल्याण में? ये देखो, इसके अंदर लास्ट ऑर्बिटल्स कौन कौन से भरते हैं? 6s भरता है, 2f भरता है, 5d भरता है और 6p भरता है. इसके अंदर p भी आ गया, इसके अंदर इसके अंदर s भी आ गया, इसके अंदर p भी आ गया, d भी आ गया, f भी आ गया. अब देखो, पहला जो दो ग्रुप्स है उसके अंदर 6s भरेगा तो s ब्लॉक का एलिमेंट्स आ गया. उसके बाद 4f भरेगा तो मेरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आया, f ब्लॉक का एलिमेंट्स आया, मेरा लैंथेनॉइड्स आया. उसके बाद 5d भरेगा, मेरा d ब्लॉक का एलिमेंट्स आ गया, मेरा 5d ट्रांजिशन सीरीज आ गया. और उसके बाद 6p भरेगा, मतलब मेरा p ब्लॉक का एलिमेंट्स आ गया. सारे ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन द 6th एंड द 7th पीरियड. है ना बेटा? Yes. Yes. Am I connected? Are you guys sleeping or what? Like, No. okay. You all are following this, right? Or you're just blindly looking in the screen and thinking, ki, why have I chosen science? I still have time to go back. Don't think better. It's very nice. ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. Yes. देखा, 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, 5d ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, s ब्लॉक के भी हैं और p ब्लॉक के भी हैं. Lanthanoid series, they start from cerium and they end at deuterium. इसके अंदर मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है 7th पीरियड के अंदर. 7th पीरियड में अगेन द सेम सीन इज गोना हैपन. इसके अंदर एक्टिनाइड्स है, थोरियम एंड लॉरेंशियम तक जाता है. सारे मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं वो सब ये वाले पीरियड के अंदर आएंगे. इसके अंदर क्या भरेगा? 7s, 5f, 6d और 7p. सब ऑर्बिटल्स का s, p, d, f सब आ गया. मतलब इसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स रहेगा. तो ये भी एक कंप्लीट पीरियड है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, s ब्लॉक भी आ रहा, p ब्लॉक भी आ रहा, d भी और f भी. 32 एलिमेंट्स हो रहे इधर. आ जाओ. इंक्लूडिंग actinide series, which is the 5f inner transition series, thorium and lawrencium starting और ending में. इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट पीरियड के अंदर at all, n is your principal quantum number. Orbitals which are filled is 1s. 1s orbital is equal to 1 orbital. So total number of elements 2. Second period के अंदर 1s and 2p. Total कितना orbitals हो गया? 4 orbitals हो गया. तो elements कितना आ गया? 2 plus 6 8. Similarly third में, similarly fourth में. तो total available orbitals जो है उसका ही multiple आ रहा. ठीक है? और rather twice the number of it. फर्स्ट में 1 ऑर्बिटल है तो टोटल एलिमेंट्स कितना आएगा? 2. 1 into 2 2. सेकंड और थर्ड में 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर फिलिंग. 4 into 2 8 एलिमेंट्स आएगा. फोर्थ के अंदर 9 ऑर्बिटल्स है, फिफ्थ के अंदर 9 ऑर्बिटल्स है. 9 into 2 18 एलिमेंट्स आएगा. सिक्स्थ और सेवेंथ के अंदर 16 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है फॉर फिलिंग. 16 into 2 32 एलिमेंट्स आएगा. और यहाँ से मुझे मेरा वो फॉर्मूला मिलता है 2 times the into n square. है ना? Yes. ठीक है. बट दिस इज मोर एक्सप्लेन, दिस इज मोर इन डिटेल जो आपने 10th में नहीं पढ़ा था. इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा. ये बेसिक्स अगर आपके दिमाग में बैठ गए ना, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और
जो भी केमिस्ट्री में आप एलिमेंट, अगर आपको एलिमेंट दिया जाएगा ना, यू विल ऑटोमेटिकली डिस्टिंग्विश द एलिमेंट ऑन दिस बेसिस एंड you'll become a very famous science student, you'll become a very intelligent science student. I'm assuming that you all are noting this table down. Yes. सर Yes बेटा, बोलो क्या बोल रहे थे? स्क्रीनशॉट लिया है कि लिख रहे हो? अगर स्क्रीनशॉट ले रही है तो वी कैन गो अहेड, अगर लिख रहे हो तो आई विल वेट। 7 minutes. आई विल वेट। Writing. सर हाँ बेटा। ये यूट्यूब पे डलेगा ना? यस बिल्कुल डलेगा, डोंट वरी। अच्छा तो यू आर सेइंग कि हम लोग नोट्स बाद में लिख लेंगे जब यूट्यूब से देख करके, ऐसा? नहीं नहीं, वो मेरे फोन में नहीं, प्रॉब्लम है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हैं। चलो, should we go ahead? I just wanted to explain the logic over here. तो टेबल में एकदम क्लियरली दिख रहा है लॉजिक, और ये टेबल आपको याद रखने को भी काम आ जाएगा। Yes. Done, sir. है डन। डन। चलो I'm just fast forwarding a bit. अभी देखो, वर्टिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में, तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, it has same number of valence electrons, so definitely it will have similar properties. But there is a difference between same properties and similar properties. Same बोले तो Exact thing. exact same, Exact. similar बोले तो थोड़ा Some सा properties थोड़ा similar. बहुत। मोटे जैसा। it is just मिलता जुलता। yeah, मिलता जुलता, that way. Very good बेटा, you are so intelligent. Not intelligent, शायद मैंने ही बताया था आपको पहले, ये similar और same का difference. So all these elements have similar outer electronic configuration, same number of valence electron. इसने ऐसा नहीं बोला similar number of valence electron. Same बोले तो सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर छह इलेक्ट्रॉन, राइट? बट प्रॉपर्टीज इज सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर बोला है उसने। सिमिलर क्यों? किसी का 1s1 है तो किसी का 7s1 है, हर एक का n डिफर हो रहा है, बट s1 सबके लिए सेम रह रहा है। ठीक है ना बेटा? यस। अच्छा, मुझे ऐसे क्यों लगता है there are very limited number of students who are paying attention, because I can hear the same voice again and again. I hope the people who are silent are paying attention and you all are actually understanding things better. It is okay if you don't want to speak, but I'm just assuming that you are understanding. It should not be like you are in dark. यस सर। Hold on. Okay. So अब हम लोग ग्रुप वाइज देखते हैं कि भाई ग्रुप वाइज सिमिलर प्रॉपर्टीज की जो बातें हो रही हैं, ये क्या बातें हैं, ये कौन सी बातें हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर सिमिलर बता रहे हैं। आ जाओ, ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे हैव ns1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? एज ऑफ नाउ थ्रू एन ओवरव्यू ऑफ दिस। अगर आप हर एक लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो S1 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 सब में दिख रहा है, बट 2s1 3s1 ऐसे हो रहा है। तो इसका जनरल, इन जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिख सकते हो बेटा? NS1। ये देखो बेटा, ये रहा आपका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। दिखने में ज्यादा दिखता है, बट अगर आप ये बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लोगे बच्चे, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर एवर गेट कंफ्यूज इन दिस। आई होप अभी जो आप लोग आपके सामने देख रहे हो ये कॉन्फ़िगरेशन, आपको डर नहीं लग रहा है, आपको समझ रहा है कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट? जो हाईलाइट किया है ब्लू में, ये दिखा रहा है कि इसका लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसका लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। All the elements of group 1 are called as alkali metals. ये तो I think पहली बार नहीं सुन रहे हो तुम, right? Yes. All elements in group 1 are your alkali metals. What is the oxidation number of all elements of group 1? Very good. Remember मैंने redox reaction में सिखाया था आपको? The oxidation state for all the alkali metals is to be taken as +1. अब समझ में आ रहा है क्यों +1 ले रहे हैं हम लोग? Because इन सब के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज गेन कर लेंगे अपने आयनिक स्टेट में, and that is why we are giving them the oxidation number of +1. और भाई माइक में कौन फूक मार रहा है? भाई म्यूट कर ले, ठीक है? सर हाँ बेटा, हाँ बोलो। एक ट्रिक बताओ। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। वो से 2s1 है ना, आओ। तो s1 का तो पहले इसका है, ये कंफर्म है, पर अभी देखेगा ना 2 तो सेकंड रो में आता है, फिर 3 है तो थर्ड रो में आता है, 4 है तो फोर्थ रो में, 5th है तो 5th रो में, 6 है तो 6th। Absolutely, very good, yes। तो ये इसका लास्ट वाला जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे कि लिथियम के अंदर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा? 2। सोडियम के अंदर क्या है? 3। पोटेशियम के अंदर 4, रुबिडियम के अंदर 5, सीजियम के अंदर 6 और फ्रांसिसियम के अंदर 7। सो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो अपने को उस एलिमेंट का पीरियड नंबर बताता है। वो ये बताता है कि वो कौन से पीरियड में लाई करेगा। वो जो 7 पीरियड्स हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, वो कौन से पीरियड में लाई करता है। तो लिथियम लाइज इन द सेकंड पीरियड, रुबिडियम लाइज इन द 5th पीरियड, पोटेशियम इन द 4th एंड फ्रांसिसियम इन द 7th पीरियड। ओके बेटा, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बच्चे। सर फिर लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप बताएगा। वेरी गुड, यस यस, एक्सीलेंट। अच्छा, आई एम अप्रिशिएटिंग यू टेकिंग द एफर्ट्स ऑफ रिवाइजिंग। तो लास्ट ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में, वो बताता है कि वो कौन से ग्रुप में है। तो लास्ट शेल का जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये सब एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है। सिंपल। ये बेटा समझा क्या? पोजीशन समझते। तो अभी देखो, अगर मेरे को रैंडमली किसी ने बोल दिया कि पोटेशियम है, तुम पोटेशियम का ग्रुप मेरे को बताओ, ब्लॉक मेरे को बताओ, पीरियड मेरे को बताओ, तो ये कौन से ग्रुप में लाई करता है? फर्स्ट ग्रुप, बिकॉज लास्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से पीरियड में लाई करता है? 4th पीरियड, बिकॉज मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4 ओवर हियर। और ये कौन से ब्लॉक में लाई करता है? ये एस ब्लॉक में लाई करता है। एस ब्लॉक में क्यों? बिकॉज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द एस सबशेल। अयो यस सर, समझा ना? Yes, sir. यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। कौन तेजस था? कौन था जिसने बोला? केदार टर्डे, केदार था। वेरी गुड बेटा। ये देखो, these are the similar properties of alkali metals. They have lower density than other metals. Low density metals. Density समझते हो ना बेटा? Yes. Metals होते हैं but with low density. Low density means less mass per unit volume. One loosely bound valence electron, last electron में एक ही electron है. Large atomic radius. Obviously when I move down the group, atomic radius बढ़ता जाएगा because shells are increasing. Low ionization energies. मैंने कल आपको बताया था ionization energy. यस
नहीं, यस नहीं, मेरे को बताओ व्हाट इज आयनाइजेशन। +1 चार्ज को मतलब +1 ऊपर आने के लिए वो वेरी गुड। कितने वो उसके लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कितना एनर्जी लगेगा। लास्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकने में ज्यादा एनर्जी लगता नहीं है, इसीलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी लो है ना। वेरी गुड। yes, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अगर ये एलिमेंट ने कोवैलेंट कंपाउंड बनाया तो उस कंपाउंड के अंदर अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया तो वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार नहीं है, तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, रादर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। दे आर हाईली रिएक्टिव। Why are they highly reactive? All elements react to become stable. The elements will always try to attain stability by either getting 8 electrons in the last shell or 2 electrons in the last shell, right? Mostly 8 electrons ही पकड़ के चलते हैं हम लोग। octet rule, octet rule सबको पता है? yes, हाँ, तो ये सब एलिमेंट्स को देखो बेटा, अगर ये सब एलिमेंट्स इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, रिस्पेक्टिव नियरेस्ट नोबल गैस। Yes. ठीक है, तो इसीलिए दे आर वेरी रिएक्टिव। दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज दे कैन इजीली लूज द वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। तो जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट मतलब स्टेबल हो सकता है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट भी करेगा। समझा कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझा बेटा? yes, Any doubts up to now? no, no Okay बेटा, okay बेटा। अच्छा, सेकंड पीरियड इज योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी थर्ड पीरियड देखो बेटा। थर्ड पीरियड, आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, नॉट पीरियड, ग्रुप। थर्ड ग्रुप देखो, थर्ड ग्रुप के अंदर क्या आ रहा है? थर्ड ग्रुप के अंदर मेरा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट्स भी आ रहा है, राइट? बिकॉज लैंथेनम और एक्टिनियम के साथ ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स रखा रहता है और वही मेरा थर्ड ग्रुप के अंदर काउंट होएगा। यस yes राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा? yes अभी देखो क्या होता है ना, थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इसके लास्ट शेल में और रादर इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर मैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को देखूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्रेसिवली फिल होता है इन द एंटी पेनल्टीमेट और द प्री पेनल्टीमेट शेल। तो ये वो रूल फॉलो नहीं करेगा, ये वो रूल फॉलो नहीं करता है, इसीलिए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को सेपरेटली हमने पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा हुआ है, just so that it does not disturb the symmetry, it does not disturb the logic we are applying in the periodic table कि the group number corresponds to the number of valence electrons. For lanthanoids and actinoids it does not come out to be true when placed in the third group. That is the reason why lanthanoids and actinoids are placed separately down in the separate series. Otherwise they are very much a part of the periodic table, but to avoid this disturbance they are kept down below at the periodic table. Okay? yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिजर्व हो गया यहाँ पे ऐसा करने से। So long form of periodic table is in accordance with the modern periodic law. Okay, so now let us see the position of the elements is based on its valence shell configuration. I have highlighted with black background is nothing but the last, it's the valence shell configuration of elements. इतना clear नहीं है, but more or less now you have understood कि भाई ये क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है? Valence shell configuration है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है।
ये देखो, ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है, ये पीरियड्स के अंदर, देखो जब आई, जो आपको दिख रहा है, ये एलिमेंट्स के अंदर ये जो शेल दिख रहा है आपको 1s 2s 3p 5d 4f, इसके अंदर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है। इनके अंदर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए इस बेसिस के ऊपर हमने पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए हैं, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक। नाउ whatever you have studied in 10th standard, is it making sense now कि क्यों s block, क्यों p block, क्यों d block और क्यों f block? Yes. Yes, sir. Yes. थोड़ा Yes. समझ में आ रहा है बेटा? That is why Yes, you, sir. that is why they bring you to Yes. 11th standard and they tell you कि चल बेटा थोड़ा पढ़ा, अब थोड़ा और पढ़। तो this gives you the clarification, this gives you a clear picture कि why are these blocks divided, s block, p block, d block and f block, क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा। ठीक है, आप या तो बाद में या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में यूट्यूब से देख करके उसको नोट डाउन कर लेना बेटा। ये सब बहुत इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको समझने के लिए, आपकी लाइफ आसान करने के लिए। S, P, D and F block elements. But there are two exceptions. The first exception is helium. Look at the electronic configuration. Electronic configuration 1s2. 1s2 के हिसाब से ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आना चाहिए बेटा? S block. S ब्लॉक। S बट block. इसको अपने S किधर, हाँ वेरी गुड, बट इसको हमने कहाँ रखा हुआ है? T. Block. You know why we are doing this? noble gases. Excellent. gas. Because its properties are exactly similar to all other noble gases. So although its configuration is 1s2, according to the table, it should be placed in the s block element because its last electron is entering the s subshell. Still, not following the rule, as an exception, we are placing it in the p block because its properties are resembling noble gases. This is the first exception. ठीक है, ये यहाँ ना रख करके वहां रखा है हमने इसको p block में डाल दिया है with other p block elements which are also called as your zero group. Like all other 18 elements, helium has a completely filled valence shell and as a result it exhibits characteristic property of other noble gases. And the other hydrogen, the other exception is hydrogen. इसको कोई लेता नहीं है बेटा, ना तो S ब्लॉक वाले लेते ना तो P ब्लॉक वाले लेते। S ब्लॉक वाले बोलते रहे भाई तू तो गैस है, हम सारे मेटल्स हैं, तू क्या करेगा यहाँ पे, बाजा। P ब्लॉक वाले बोलते रहे भाई तेरा इलेक्ट्रॉन तो S के अंदर जा रहा है, तू पॉजिटिव आयंस बनाता है, हम सब नेगेटिव आयंस बनाते हैं, हम सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तू दे रहा, तू वहां जा। तो इसको सब धक्का मारते बेटा। तो इसको क्या किया साइंटिस्ट ने, उसको बोला बेटा तू यहाँ भी मत जा, तू वहां भी मत जा, तू राजा बन जा पीरियोडिक टेबल का। उसको स्पेशल पोजीशन देकर के बीच में डाल दिया क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग है। He was hydrogen is that person who is confused in life. What should I do? Should I behave like metals? Should I behave like non-metals? Should I gain electron? Should I lose electron? Should I have positive क्या बोलते हैं oxidation number? Should I have negative oxidation number? तो this is एक कॉलम जैसे होता है मेल फीमेल अदर्स, तो हाइड्रोजन is classified into others. He behaves like everything. Sir, hydrogen more reactive रहता है. Hydrogen atom is highly reactive. Hydrogen molecule H2 is not reactive. I'll change my statement. It is less reactive as compared to H. Thank you. Reason? Because H2 में उसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है तो उसको तोड़ना आसान नहीं है। बट H एटम एक इलेक्ट्रॉन है, तड़प रहा है वो ये होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, डुप्लेट बनाने के लिए, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है बेटा? Yes sir, thank you. ये देखो, so because it has 1s1 configuration, it can be placed with alkali metals
but hydrogen can also gain an electron and form the configuration of helium, and that's why it can also be placed along with halogens in group 17. तो ये स्पेशल केस है, सेपरेटली उसको टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे डाल दिया है, उसको किसी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं किया है. सो लेट अस रिस्पेक्ट इट एंड इट्स चॉइसेस. अभी एस ब्लॉक की बात करें, last electron is entering the s orbital, whether it is 2s or 7s. Group 1 alkali metals, group 2 alkaline earth metals, they belong to this s block elements. Soft metals, ठीक है, with low melting and boiling point. Soft metal मतलब we can cut it, sodium metal. Look at their melting and boiling points. Look at their ionization enthalpies. They have very low ionization enthalpies. When I'm saying ionization enthalpy, when I'm saying ionization energy, I am saying that the amount of energy required to remove the last electron in the last shell. इन सबके last shell में एक ही इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको निकालना आसान होता है, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी कम है. अच्छा, you never have to by heart the values, this is just for your information on the screen. ये देखो, alkali metals they form unipositive ions, मतलब single positive ions, charge +1. In case of alkaline earth metals, when the 2 electrons of the last shell are removed, they form dipositive ions. समझ रहा है बेटा क्या हो रहा है? Yes sir. Yes sir. That's why they form ionic bonds. Now because they have low ionization enthalpies, s block elements are highly reactive. मैंने बताया था आपको, जल्दी they will be very reactive. सोडियम को पानी में डाला तो ऐसा आग लग जाती है उसके अंदर, ये देखो, this is what happens to sodium in water. ठीक है, now they are highly reactive, exist in free state. I hope 10th में तुमने ये किया है, extraction of elements के अंदर free state and combined state. Free state मतलब उसका original state, combined state मतलब combined with other elements. ये मैंने भी तुमको बताया था redox reaction में, याद है बेटा? Yes. हाँ, तो ये combined states, ये nature में ये जो alkali metals and alkaline earth metals जो होते हैं, ये nature के अंदर they are found in combined state. Can someone tell me the reason why they are found in combined state? Reactive. highly reactive. Highly reactive. Excellent, because they are highly reactive. So what will they do? They will quickly combine with other elements, and in nature they will always be present in combined states. Magnesium will be present in form of carbonates, sulfates, chlorides and silicates. Look over here. और मैग्नीशियम के जैसा, वो प्योर मैग्नीशियम जैसा एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, अपने को वो क्या बोलते तो भी रिएक्टेड मिलता है, क्या बता, क्या बोला, दूसरे के साथ रिएक्ट होके हाँ. मिलता है. So these are the different minerals of magnesium. Magnesium is found in the combined state. These are the names of the ores and the minerals: magnesite, dolomite, Epsom salt, kieserite, carnallite, asbestos, talc. Talc. ठीक है? This is very good information if you want to write down for your entrance and all. Note, did you note it? No. No. Why? Done. Good. No. No. Okay. No?
Done. Okay. Done. Abhi, the metallic character is going to increase as we move on the group. ये बहुत जनरल प्रॉपर्टीज था एस ब्लॉक के बारे में बेटा. एस ब्लॉक के बारे में देयर इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ where you are going to study the properties, the variations, their chemical reactions in depth. Okay, so अभी let us have a look at p block elements. p block elements की तरफ हम ध्यान देते हैं. अरे नॉन मेटल्स हैं 13 to 18. They are situated on the extreme right of the long form of periodic table. ठीक है. So S block and P block are together called as the representative elements of the periodic table. ये भी हमने 10th में पढ़ा है. P block के अंदर last electron is entering the p orbital. So this is going to be the general outer shell electronic configuration. कौन से पीरियड में है उस पे डिपेंड करता है n का वैल्यू, whether it is second period, fifth period, third period and so on. So n is standing for the period and the configuration will be ns2 np126, and it can be np1, it can be np2 and it can go up to np6. So this is how you will represent the general outer shell electronic configuration of p block elements. All p block elements can be represented or rather all p block elements का outer shell electronic configuration can be represented as ns2 np126. ठीक है, ये लिख लिया. And what is going to be the general outer shell electronic configuration of s block elements बेटा? ns122 है ना? Yes. It's either going to be ns1 or it's going to be ns2. So in general for all s block elements what can we write? ns122. जैसे यहाँ पे लिखा है ना np126, वैसा s block के लिए अपन लिखेंगे ns122 और p block के लिए क्या हो जाएगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन? ns2 np126. वेरी गुड. ऐसे हर एक पीरियड के एंड में we'll have a noble gas with a stable configuration of ns2 np6 हर एक पीरियड के एंड में. So in this p block we are going to have metals, we are going to have non-metals and we are going to have. बहुत अच्छा, ये metals, non-metals, metalloids सबको रखता है ना. ये जो ब्लू वाले हैं ये आपके metals हैं. ये जो ये कौन सा कलर है बेटा? पोपटी कलर है, they are non-metals. and ये जो orangish कलर है they are your metalloids. No, this is not poppy. This is some color. I don't know what color it is. Light blue. Trans blue. Aye. Girls Trans must be knowing. blue. Trans blue बोलते बेटा इसको. अच्छी बात बोलते होंगे भाई, हमें क्या पता. ये देखो, non-metallic character is increasing across the period, and metallic character is increasing down the group, which is very much visible. ये देखो मस्त एकदम. They are forming compounds either by accepting electrons and forming negative ions or by sharing electrons and forming covalent bonds. But electron चाहिए इनको क्योंकि इनको bond बनाने की. Now chemically important groups. Important groups of p block are the group 16 elements which are alkogens and group 17 which are called as your halogens. Actually 14 15 13 14 15 भी important है, वो भी पढ़ेंगे बाद में. but chemically ज्यादा reactive अपने chalcogens और halogens होते. ठीक है. so what do they need? 16 और 17. 16 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 17 में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और
कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। तो 16 वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा जनरली, और 17 वालों का -1 होगा। ये देखो, क्लोरीन हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है। इट रेडिली एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट। ये पता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन में Ne क्यों लिखा हुआ है? उसके पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू नियॉन, दैट्स व्हाई Ne लिखा हुआ है ना बेटा? इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना? नहीं। अच्छा अच्छा। Let us look at oxygen which is belonging to chalcogen family. इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दिया तो ये नेगेटिव -2 आयन बनाएगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती। ठीक है। Now when I talk about noble gases, their configuration is NH2NP6, which is a complete shell. They are not reactive. Actually, they are also reactive, but at altogether. Less reactive. Sir, disconnected. Elements belonging to group 3 to 12. ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बतानी थी जो रह गई एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक में। जो हमने एस ब्लॉक में अपना ये भाई था ना राजेश, राजेश ने बताया था अपने को कैसा आइडेंटिफाई करने का एस और पीरियड और ब्लॉक। तो वैसे ही पी के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। लेट मी गिव यू द हिंट हियर ओनली। राजेश कौन है? केदार। हाँ, केदार। बेटा, ये आपके सामने पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सबको दिख रहा है? ठीक है। तो अभी इसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। कंसीडर फास्फोरस। फास्फोरस का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 3s2 3p3। Yes. है ना? 3s2 3p3। अच्छा, मतलब इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वांटम नंबर क्या है? 3। यस। तो कौन से पीरियड में लाई करेगा ये? थर्ड पीरियड। वेरी गुड। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है बेटा? पी। तो कौन से ब्लॉक में लाई करेगा ये? पी। पी के अंदर। अच्छा, अब हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ग्रुप नंबर ढूंढना यहाँ पे। ठीक है। इसके पी सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 के अंदर अगर मैं 12 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 15। इसका ग्रुप नंबर क्या दिख रहा है आपको? 15। So to find out the group number of p block elements, you are simply supposed to add 12 to the number of p electrons, or the other way to say it is add 10 to the number of total valence electrons. इसके पास total valence electrons कितना है? 5 यस। है ना? 2 + 3, s का 2 और p का 3। अगर ये 5 के अंदर मैंने 10 ऐड किया तो मेरे को 15 मिल रहा। हाँ। सिमिलरली कार्बन का देखो, अगर मैंने 10 के अंदर 4 ऐड किया तो मेरे को 14 मिलेगा। सिमिलरली क्लोरीन का देखो, अगर मैंने 10 के अंदर 7 ऐड किया तो मेरे को ग्रुप नंबर मिल रहा है 70। है ना? तो ये ग्रुप्स कहां से स्टार्ट हो रहे बेटा? 13 से 18 तक स्टार्ट हो रहे। इसके पहले और कितने ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में? 12। राइट बेटा? सो मेरा जो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर अगर मैं 12 ऐड कर दूं, उसके अंदर अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे उसका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। सबको समझा? Yes. Everyone? Yes. So tell me the group, tell me the block, tell me the
पीरियड ऑफ ब्रोमीन, अभी इजी है बिकॉज आपके सामने है, बट बाद में आप ये लॉजिक लगा के करना है, आज होमवर्क देता हूँ। The period is 4, the block is P and the group is 17. 17 कैसे किया बेटा मैंने? 12 प्लस पाँच 7 5 नहीं रे, 12 पाँच 12 प्लस 5 5 या फिर 10 प्लस 7, ऐसा कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है, कैन आई गो अहेड? Yes. yes Yes, sir. डी ब्लॉक पे आते हैं। पहले ये लॉजिक ही कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट आया तो मैं उसको कैसा देख के बताएगा कि भाई इसके अंदर केड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है बेटा? पेनल्टी नहीं, विच शेल? एस पी डी एफ। S डी ओ भाई कहां जाके मरूं? डी ब्लॉक है यार, D. डी ब्लॉक में एस क्यों बोल रहे हो आप? D. डी। ओके, सो इसके डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का तरीका ये है, इसके डी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें 2 ऐड कर देने का, ऐड 2 इन दैट, बिकॉज उसके पहले एस ब्लॉक का 2 ग्रुप्स है, वो नंबर 2 उसमें उसके डी इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करेंगे तो उसका ग्रुप नंबर पता चलेगा। मॉलिब्डेनम देखो, मॉलिब्डेनम, सर ये क्या होता है? अच्छा फॉरगेट इट। 42 Yeah, 42 42 is your molybdenum. ठीक है, तो Okay. अभी now if I look at my क्या बोलते हैं वेनेडियम, अगर मैं वेनेडियम को देखूं, ठीक है, वेनेडियम का डी इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 3 3 के अंदर अगर मैंने 2 ऐड किया तो मुझे कितना मिलेगा? 5. 5. That is its group number. Look at osmium. Osmium. 76 Very good. 76. उसका डी इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 5. 6 है बेटा, देखो 6 है। 5d6 6s2 दिखा रहा है ना? यस तो 6 प्लस 2 कितना हो जाता है? 8 इज इट्स ग्रुप नंबर। ये बेटा समझ रहे हैं ना? yes Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, very good. So this is how you will find out the group number and all. ये D block elements are nothing but your transition elements. They are lying in between S and P. Last electron is entering the D subshell. D. So how many series will have? 4 series. 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. 3D series last electron will be entering 3D, 4D में 4D, 5D में 5D और 6D में 6D. Outer shell, जैसे हमने इसके लिए देखा, the general outer shell outer electronic configuration is NS1 to 2. P block के लिए हमने क्या देखा बेटा? NS2 NP126 है ना? तो उसी बेसिस पे कोई बता सकता है डी ब्लॉक का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, बिकॉज इसके अंदर इसके अंदर ना लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एंटरिंग द लास्ट शेल, इट इज एंटरिंग द सेकेंड लास्ट शेल। सो अगर लास्ट शेल आपका 4 है तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग 4-1 3 के अंदर। तो इफ n is your last shell, your second last shell is going to be n-1. So can I say the last shell configuration is going to be, or the valence shell configuration is going to be n-1 3 n-1 d 1 to 10 ns2 ns1 to 2, because वो exceptions भी आएंगे उसके अंदर। यस यस Repeat. बाउंसर नो नो Repeat. Yes. अभी मैं दिखाता हूँ बेटा, रुको। ये देखो, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले सपोज 3D का एग्जांपल लूं,
तो पहले 4s में जाता है, उसके बाद 3d में जाता है. So if n is equal to 4, what is 3? 4 minus 1, which is n minus 1. तो अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूं सबके लिए, irrespective of the period, तो जनरलाइजेशन में n डालूंगा मैं. So it's going to be ns 1 to 2, n minus 1, d 1 to 10, right? Yes. yes, हर एक का अलग अलग है ना, कहीं पे d1 है, कहीं पे d2, कहीं पे d10, yes, कहीं पे ns1 है, कहीं पे ns2 है, इसीलिए 1 to 2, 1 to 10 लिखा हुआ है. ओके? yes. Yes. Sir. ये हमने लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है. These D blocks Done. are placed. आए. So they are going to lie between S and P. S are highly reactive metals, P are highly reactive non-metals. So उनके बीच में ये D रखेला है, and that is why they are called as the transition elements. Atom का size छोटा होता, nuclear charge is high, and unpaired electrons in d orbitals, they impart special characteristic properties of my d block elements. ये देखो, small atomic size, high nuclear charge, and there are many unpaired electrons in d orbitals. Beta, when I say unpaired electrons in d orbitals, what do I mean? d orbital में कितना blocks होता है? 5. तो पहला वो सब 5 पहले द लॉ ऑफ फिलिंग इज पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, एक एक होने के बाद फिर दूसरा राउंड शुरू होगा पेयरिंग का. तो जब तक दूसरा राउंड शुरू होता है अप टू जब तक 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तब तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा. एंड बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत सारा प्रॉपर्टीज रहेगा. जैसे जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे ना, यू विल कम टू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इजीली फॉर्म बॉन्ड, बट unpaired electrons are readily available for bond formation. अभी देखो D block के अंदर most of the elements we have are metals only, and they exhibit different oxidation state. Element अलग अलग oxidation state दिखा सकता है. This property is because of क्या बोलते हैं incompletely filled or unpaired electrons in the d orbitals. इसके d orbital में बहुत सारे unpaired electrons होते हैं, उसकी वजह से इसके पास variable oxidation state दिखाने की property है. ये सारे metals होते हैं, ठीक है. They show colored compounds, they form colored compounds. Look at this, the variable oxidation state of d block elements. देखेंगे percent में detail में, so don't worry about it right now. अभी iron and most of the d block elements, ये जो d block elements होते हैं, they are widely used as catalysts. Catalyst पता है सब लोगों को क्या होता है? Yes. क्या होता है? Yes. They do not The take It part in takes- reaction. Forget about speeds up the forget about reaction. forget about taking part or not taking part. The main property is they speed up the reaction. Speeds up. वो Chemical रिएक्शन का स्पीड फटाफट कर देते हैं. तो अगर आप देखोगे ना, जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट या फिर उसके एलिमेंट का कोई कंपाउंड रहता है, आपने देखा होगा वेनेडियम, रानी निकल, टाइटेनियम, निकल, फाइनली डिवाइडेड कॉपर, ये सब हम लोग यूज करते हैं एज कैटलिस्ट. देखा है रे? Yes. ये देखो एग्जांपल्स देखो. आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है. एंड निकल इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स बोले तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट बनाते हैं. ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. We convert them into saturated fats by hydrogenation. I don't know how many of you are understanding. ये आप part 2 biology sorry इसमें chemistry में पढ़ने वाले हो. Saturated, unsaturated तो पता होगा, वो 10th में पढ़ा रहेगा तुम लोग ने. Yes. हाँ. Yes. याद रखो कि block elements are used as catalysts, and these are some of the examples. Most of these transition elements, they are forming colored compounds. For example, magnesium chloride is gulabi, and ferrous sulfate is bluish in color. Sorry, ये green बोल रही है. Green color है ये. मेरे को blue दिख रहा था. I'm color blind बेटा. So now most of the elements of D block elements are paramagnetic. Are you aware of the words paramagnetic, the diamagnetic, and ferromagnetic? No. No.
कोई बात नहीं, ठीक है। तो टेंशन, ठीक है, लोड मत लो, ये भी सिखाया जाएगा आपको 11th स्टैंडर्ड में। पैरा, व्हाट इज डाई, व्हाट इज फेरो। They are attracted to external magnetic fields because they have unpaired electrons. So that is why they are paramagnetic. ये देखो, iron and nickel, Fe+3 and Ni2+, they exhibit paramagnetism. Zinc, cadmium and mercury, these elements are not considered as transition elements. Although they are placed with transition elements, they are not considered as transition elements. Transition elements का basic definition goes with the incompletely filled d subshell. इसका जो d subshell है, इसके अंदर unpaired electrons होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बट अगर आप जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को देखो तो इसका डी सबशेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? बिकॉज डी सेल इसका कंप्लीटली फिल्ड है। यस हर एक शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया है। ये इसकी वजह से हम लोग जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं थियोरेटिकली, बिकॉज इनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी देखा, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं दिखा पाता है, बिकॉज इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ये भाई के पास डी है पर पूरा भरेल है। ओके, now at the end of the periodic table there are these two groups which are called as lanthanoids and actinoids. Have I exceeded the time? Yes. What? Yes, nonsense. बीच में वो लाइट बंद हो गया था तो वो सब हुआ था ना बेटा। सब पढ़ाओ नहीं यार, छोड़ रहने दो, संडे इवनिंग क्यों खराब करूं तुम्हारी और मेरी दोनों की। सो आई होप अभी तक जितना सिखाया तुम सब लोग को समझा। यस यस नो इट इज थ्योरी, तो थोड़ा बोर होएगा तुम लोग को, बट दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दीस इमेजेस एंड वीडियोस ताकि तुम लोग को बोर ना हो। बिकॉज अगर ये सब बकवास मैं बोर्ड पे लिखूं तुम लोग सच में बहुत पक जाओगे। रेडॉक्स रिएक्शन हमने बोर्ड पे इसलिए किया था बिकॉज उसमें सॉल्विंग था, तो दैट इज कंपैटिबल, बट